اور آج میں اپنی گہری خوشی کا اظہار کرتی ہوں کہ آپ بھائی بہنوں کے سامنے اپنے خیالات کو میں شیئر کر رہی ہوں. کچھ میں شیئر کروں گی، کچھ آپ لوگوں سے سنوں گی، کیونکہ علم ایک طرفہ کبھی نہیں ہوتا ہے. تالی ایک ہاتھ سے کبھی نہیں بجتی ہے، دو ہاتھ چاہیے تالی بجانے کے لیے. اسی طرح علم لینا اور علم دینا کوئی کسی کو مسلسل طور پر نہیں دیتا ہے. جو بھی ٹیچر کسی کو علم دیتا ہے وہ ان سے علم ضرور سیکھتا ہے. جیسے آپ کو ابھی ایک اشارہ کیا گیا تو میں تھوڑا سا اس بات کو کریکٹ کروں گی کہ علم کے گھر میں کوئی علم دینے نہیں جا سکتا. یہ مولانا حاضر امام کی بہت بڑی رحمت اور نعمت تھی ہم پر کہ مولا نے منتخب کیا. لیکن ہم یہ کہیں گے کہ ہم نے وہاں سکھایا نہیں، سکھا سکتے بھی نہیں تھے، لیکن ہم نے بہت کچھ سیکھا ہے، وہاں سے بہت کچھ سیکھا ہے. اور آج وہی سرمایہ ہے ہمارے ساتھ میں کہ جب کبھی کوئی ایسا وقت ہم پر آتا ہے، کوئی ایسا معاملہ سامنے آتا ہے، تو مولا کی یہ دین، مولا کا یہ مشن ہمارے سامنے اس طرح آ جاتا ہے کہ بڑے بڑے پہاڑوں کا بھی مقابلہ ہو سکتا ہے. تو یہ جو کچھ بھی ہیں ہماری زندگی میں، کیونکہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم طریقہ بورڈ ہی میں پیدا ہوئے ہیں اور طریقہ بورڈ کے جھولے میں جھول کر ہم بڑے ہوئے ہیں. اور یہ کہہ سکتے ہیں کہ طریقہ بورڈ ہماری جان ہے، ہمارا مشن ہماری جان ہے، ہمارا خون ہے. اور ابھی بھی ہماری یہی خواہش ہے اور مولا سے یہی دعا ہے کہ زندگی کے آخری دم تک، آخری لمحے تک مولا کے مشن کے سامنے ہماری زندگی میں کوئی چیز کبھی نہ آئے، کبھی نہ آئے. مولا جس طرح چاہے ہمیں اپنے مشن میں استعمال کرے، یہ ہماری خواہش ہے. اور آپ لوگوں سے بھی ہماری یہی دعا ہے کہ جب کبھی بھی آپ اپنے لیے دعائیں مانگتے ہیں ہمیں ضرور یاد کرنا، چونکہ مولا کے مشن میں آگے جانے کے لیے، مضبوط رہنے کے لیے ہمیں جماعتوں کی دعاؤں کی بہت 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 زیادہ ضرورت ہے. تو میری یہ عرض رہے گی آپ لوگوں سے کہ اپنی دعاؤں میں ہمیں ضرور یاد کرنا. اور آج ہم کچھ دے رہے ہیں، کچھ آپ سے لے کے جائیں گے، بلکہ زیادہ آپ لوگوں سے لے کر ہمیں جانا ہے تاکہ ہم اور بھی زیادہ مضبوط ہو سکیں. جہاں تک مجھے جو سبجیکٹ دیے گئے ہیں، ایک تو ہمارے جماعت خانہ کی اٹینڈنس، جماعت خانہ کیا ہے، کیوں جانا چاہیے، ہماری دعا بندگی وقت پر پابندی سے ادا کرنا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہماری زندگی کی سب سے پہلی اور بڑی ذمہ داری ہے وہ ہے مذہبی علم حاصل کرنا. آپ کو معلوم ہے کہ یہ طریقہ بورڈ اگر قرآن کے ترجمے میں ہم اس کو بتائیں تو یہ وہی مشن ہے جو 1400 برس پہلے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خداوند تعالیٰ نے دیا تھا. جیسے ہم کو پتہ ہے، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ. جہاں اتنے سارے ٹائٹل سے ان کو نوازا، وہاں سب سے بڑا جو ان کا مشن تھا وہ تھا خدا کی طرف لوگوں کو بلانا، دعوت دینا. ان کے ناموں میں سے، ان کے کاموں میں سے ایک کام ان کا دعوت دینا تھا، اس لیے ان کو دائی کہا گیا. اور جیسے آپ نے ہماری ہسٹری بھی پڑھی ہوگی تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ماضی میں کافی عرصے تک ہمارے چند امام خود معلم ہوا کرتے تھے. ان کے زمانے میں مدارس ہوتے تھے، مومنین جمع ہوتے تھے، مومنین امام کے پاس بیٹھتے تھے اور کافی چیزوں کے خلاصے امام سے دریافت کرتے تھے.
اور مولا ان کو زمانے اور ٹائم کے مطابق قرآن کا خلاصہ فرماتے تھے. یعنی مولا خود رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلتے ہوئے دائی بھی تھے. وقت گزرتا گیا، دور 70 آیا، اور اس کے پہلے بھی دعوت کا سلسلہ تو جاری تھا، چونکہ دنیا کے اور کونے میں دعوت پھیلانی تھی. اور اس وقت ہمارے بڑے بڑے دائی اور پیر، ہمارے انڈو پاک کی زبان میں ایران سے جب تعلقات ہوئے تو ان کو پیر کہا گیا، ورنہ ہمارے دائی اور سیدوں نے مولا کی جانب سے مختلف جگہوں کا دورہ کیا اور وہاں دعوت کا کام انہوں نے جاری کیا. مصر میں سب سے بڑا جو ہمارا دارالحکمت نام کا علم کا ایک سب سے بڑا مقام تھا، اور مولا نے اس کا بھی خلاصہ امام آقا سلطان محمد شاہ صلوات اللہ علیہ نے فرمایا کہ وہ وقت تھا جب مومنین میں یونٹی تھی، انڈرسٹینڈنگ تھی، اور مل کر مولا کا کام کرتے تھے، اس لیے وہ ادارہ مضبوط تھا. مولا نے فرمایا کہ وہ ٹوٹ کیسے گیا؟ کیسے ٹوٹ گیا؟ مومنین نا ہمت ہوئے. آپس میں جب پولیٹکس آ جاتی ہے، تیرا میرا ہو جاتا ہے، ہماری بڑائی جب ہمارے بیچ میں آ جاتی ہے، کہ پولیٹکس الٹا اثر اسی وقت لیتی ہے جب انسان کا ایگو بیچ میں آ جاتا ہے، انسان کی بڑائی بیچ میں آ جاتی ہے. اور یہی چیزیں ماضی کے کچھ ہمارے ایسے لوگوں میں پیدا ہوئی، کیونکہ یہاں میں دائی کا لفظ استعمال نہیں کرنا پسند کروں گی. ہم ہسٹری پڑھیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ ہمارے امام کا جو سلسلہ امامت کا تھا وہ کہاں کہاں سے الگ ہوا اور کیوں الگ ہوا، کیا وجہ تھی. آپ تاریخ پڑھیں اور آپ اس کا جواب تلاش کریں، کیا وجہ تھی. کیونکہ مرید نا ہمت ہوئے، کمزور ہوئے، اور آپس میں خود لڑنے جھگڑنے بیٹھے. اس میں امام کی امامت پر بھی اثر پڑا، اور ہمارا اتنا بڑا علمی ادارہ ختم ہو گیا، بہت بڑا علمی ادارہ ختم ہو گیا. مولا نے فرمایا چند سال پہلے امام آقا سلطان محمد شاہ صلوات اللہ علیہ نے کہ آج وہی کام جو دعوت کا ہے، دائیوں کا ہے، وہ اسماعیلیہ ایسوسی ایشن جو اس وقت کہلاتی تھی، آج ہم طریقہ بورڈ کہتے ہیں. مولا نے فرمایا کہ ان کے ذمے ہے کہ ہمارے بچوں کو کس طرح ہمارے مذہب کی شناخت کروائی جائے، ان کو اپنے فیتھ میں، اپنے عقیدے میں کس طرح مضبوط کیا جائے. یہ کام، یہ سلسلہ طریقہ بورڈ کے اوپر ہے. اس سے پیشتر جب انڈو پاک میں دعوت کا سلسلہ شروع ہوا تو امام اسلام شاہ علیہ السلام، امام قاسم شاہ علیہ السلام اور دیگر اماموں کے زمانے میں پیر صدگرنور، پیر شمس، پیر صدردین، پیر حسن کبیر دین، پیر تاج دین، پیر نصیر دین، پیر صاحب دین وغیرہ کے جو پیر تھے، جو اوتھینٹک پیر تھے، جن کے پاس دعوت کا ایک آفس ہم کہہ سکتے ہیں، آتھورائزڈ پیر، جن کو مولا نے اس طرف بھیجا. اب یہ ہمارے پیر جب ہندوستان پاکستان کی طرف آئے تو مولا نے ان کو فرمایا کہ وہاں جا کے آپ دعوت کا کام شروع کریں. تو انہوں نے جب دیکھا کہ مولا کا فرمان تھا اس کے پیشتر یہاں اس طرف تو کوئی اسماعیلی نہیں تھے، جس طرح آپ لوگوں کے پاس بھی ماضی میں دائی آئے تھے اور آپ کے باپ داداؤں کو انہوں نے کنورٹ کیا. ہمارے پاس اوریجنل اسماعیلی بہت کم تھے. سیریا کے کچھ اسماعیلی ہم کہہ سکتے ہیں، ایران کے کچھ اسماعیلی کہہ سکتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ آپ کے علاقے کے کچھ اسماعیلی اوریجنل ہو، برسوں سے آئے ہوں، لیکن 1000 سال
1200 साल पहले उस तरफ भी दावत का काम हुआ था। सैयद पीर नासिर खुसरू उस तरफ गए थे और इन्होंने भी दावत का काम किया है बदख्शान की तरफ। इसी तरह जब हमारे पास पीर आए तो हमारे जो आबा व अजदाद थे, ख़ास तौर पे हिंदुस्तान की मैं बात करती हूँ, पाकिस्तान उस वक्त एक ही था, और वहाँ पर जो हमारे आबा व अजदाद थे बुतों की पूजा करते थे, और बुतों की पूजा का जिक्र कुरान शरीफ में भी आया है, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में भी, और हज़रत इब्राहीम और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम का जिक्र करते हुए भी कि उन लोग ने बुतों का खात्मा करके और इनको मज़हब से, जो मज़हब खुदा चाहते थे, क्योंकि खुदा के पास एक ही दिन है, इन्न दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, खुदा के पास एक ही दिन है और इसका नाम है इस्लाम। तो इसकी तालीम के लिए इनको ये अमल करना पड़ा, और इसका जिक्र कुरान शरीफ में भी है कि ये पत्थर है, क्या आपकी बातों का वो जवाब देते हैं, आप बुलाते हैं तो वो आपको जवाब देते हैं, आप इनको कहते हैं तो वो हंसते हैं या रोते हैं, आपके साथ में नहीं करते हैं, क्योंकि वो पत्थर है और वो ज़माना चला गया है। और इसी मिशन को, इसी चीज़ को अपने ख्याल में लाके हुए पीरों ने भी इस हथियार को अपने हाथ में लिया, और इन्होंने देखा कि हमारे बाप दादा जो हिंदू थे बहुत ही दिलचस्पी के साथ, अकीदे के साथ, दिल की भावना जिसको कहते हैं, प्यार और मोहब्बत के साथ बुतों की परस्तिश करते थे। सुबह शाम इनके पास जमा होते थे, कहीं कहीं तो मंदिर हुआ करते थे, देरे और देवल इनके नाम है गिनानों के अंदर भी, और आज भी कहते हैं देरा देवल मंदिर एक ही चीज़ का नाम है जिसको हम टेम्पल कहते हैं। तो इनके मंदिरों में या देवर या देरे में, या कहीं देरा और देवल नहीं होते थे, तो इनके जो बड़े बड़े पंडित हुआ करते थे, साधु सन्यासी या जिसको हम आलिम कहे, स्कॉलर्स कहे, ये एक जगह पर बैठते थे दरख्त के नीचे, और वहाँ इर्द गिर्द लोग जमा होते थे। छोटी सी इनकी भगवान की एक मूर्ति या थोड़ा छोटा सा इनका मुजस्समा होता था, और उसके सामने बैठकर वो इबादत बंदगी करते थे, नाचते थे, करते थे। पीरों ने ये सारी चीज़ें देखी, इनके जो भी अकायद थे इनका मुताला किया, और इसके बाद में पीरों ने वही रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका अपनाते हुए कि कल्लिमुन नास अला क़दरि उकुलिहिम, के लोगों के साथ इनकी अकल के मुताबिक दावत करे, बात करे, और खुदावंद ताला के फरमान के मुताबिक कि इनको विजडम के साथ, हिकमत के साथ अपने मज़हब में बुलाइए। तो ये विजडम था, ये हिकमत थी, जो बहस व मुबाहिसा थे, बेहतरीन तरीका था, मीठी ज़बान थी, जिनके ज़रिया इनको बुलाया गया। अब पीर वहाँ पर आए और सिर्फ यही बातें करके इनको ज़माने के इमाम की शनाख्त करवा के वहाँ से अगर तशरीफ़ ले जाते तो आज मज़हब इतना मजबूत नहीं होता। वो क्या वजह थी जिसकी बिना पर मजहब इतना मजबूत हुआ? क्या चीज़ थी? गिनानों के मुताले से, हमारी तारीख के मुताले से मालूम होता है कि जहाँ कहीं भी पीर तशरीफ़ ले गए थे वहाँ इमाम की मौजूदगी, इमाम के नूर को महसूस करने के लिए एक बेहतरीन आला इनके सामने रखा कि आप चाहते हैं कि ईरान में बैठे हुए इमाम को आप यहाँ हासिल करें, इनका आप दीदार करें, और जब भी आंख बंद करें तो इनको आप पाए। इसके लिए हम एक बेहतरीन तरीका या बेहतरीन चीज आपके सामने पेश करते हैं, वो है जमीन पर मौला का घर, जमीन पर खुदा का घर, जमीन पर मौला का घर, कि जहां मोमिनीन जिन्होंने इस मजहब को कबूल किया है, इस मजहब की बैयत की है, वो वहां पर जमा हो, वो बैठे और उस मौला को याद करें। अब मौला को याद करने की जरूरत क्या है? क्यों हमें याद करना चाहिए?
खुदा ने हमको पैदा किया, हम आ गए दुनिया के अंदर, हम अपनी दुनिया कमाते हैं, अपने खानदान, अपने भाई बहन, माँ बाप, आगे जाकर अपने बीवी बच्चे, उनके खानदान, हमारा कारोबार। अब इसमें से तो हमको फुर्सत मिलती नहीं है। तो खुदा का मकसद क्या है? खुदा क्या चाहता है? खुदा हर बंदे के लिए ये चाहता है कि खुद नूर है और हर बंदा खुदा के नूर की छोटी सी एक चिंगारी है। हर बंदा, खा वो इस्माइली है या इस्माइली नहीं है, मुसलमान है या मुसलमान नहीं है, दुनिया का हर फर्द जो खुदा पैदा करता है उसके लिए खुदा ये चाहता है कि वो उसके साथ मुसलसिल लिंक में रहे, चाहे उनको ये बात याद रहे या याद न रहे, चाहे इनको कोई याद दिलाने वाला हो या न हो, लेकिन खुदा की मंशा ये है। और इसीलिए हमें कहा जाता है कि इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अब हर बंदा, और इसमें खास तौर पे वो बंदे जिनको इस्लाम की तालीम मिली है, जिन्हें मालूम है कि खुदा की मंशा क्या है, खुदा हमसे चाहता क्या है। खुदा खुद फरमाता है, खुलिकल इंसान ज़ईफ़ा, इंसान को हमने बहुत कमज़ोर बनाया। और कमज़ोर बनाया इसीलिए इंसान इस बात को भूल जाता है, क्योंकि वो कमज़ोर है ना। ज़ईफ़ कमज़ोर को कहते हैं, बूढ़े को कहते हैं। अब बूढ़े तो नहीं, कमज़ोर कह सकते अपने आप को। बहुत सी बातें खुदा फरमाता है कि इंसान को हमने भूलने वाला बताया तो उस चीज़ को भूल जाता है। लेकिन मुसलसल जिनके पास दावत का सिलसिला है, वो जानता है कि अल्लाह एग्जिस्ट करता है। किस तरह करता है? अल्लाहु नूरुस समावाति वल अर्द, खुदा ज़मीन और आसमान का नूर है। इसीलिए खुदा पर फरमाता है कि इल्म वालों के लिए इबरत कहाँ है, कहाँ है। अगर हम कुछ मिसालें हासिल करना चाहे, खुदा की मिसालों में से कुछ सबक हासिल करना चाहे, तो किस तरह हासिल कर सकते हैं? अल्लज़ीना यज़कुरूनल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिहिम व यतफ़क्करून फ़ी ख़ल्क़िस समावाति वल अर्द। वो लोग जो चलते हुए, बैठे हुए, लेटे हुए, सोए हुए खुदा को याद करते और खुदा की चीज़ों के ऊपर गौर व फिक्र करते हैं, वो तो खुदा से इबरत हासिल करते हैं। और इसको मालूम है कि किसी भी शख्स को खुदावंद ताला ने इबादत, बंदेगी, या इसका दूसरा नाम हम ये दे सकते हैं कि खुदा और बंदे के बीच में एक लिंक के बगैर खुदा ने पैदा नहीं किया है। अब उस लिंक को समझने के लिए, उनको मजबूत करने के लिए, वो कौन सी चीज है जो खुदा और इंसान के बीच में है? वो है खुदा की याद, खुदा का नाम, खुदा का जिक्र। और सबसे बड़ा जिक्र वो है जिसके लिए हमें बताया जाता है। वो जिक्र ये है जो हर बंदे के लिए है। एक तो खास जिक्र आता है जिसको हम इसमें आज़म कहते हैं, जो बैतुल ख्याल की बख्शीश से मिलता है। और उसके लिए ज़माने के इमाम जब तशरीफ़ लाते हैं, और जहाँ कहीं मौला का परमिशन होता है, जिस तरह परमिशन होता है, इस तरह ये सिलसिला होता है। लेकिन आम मोमिन के लिए वो कौन सी चीज़ है? इन्ना सलात तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर। यकीनन सलात ऐसी चीज़ है जो आपको हर किस्म की बुराइयों से बचाती है। ये हर किस्म की बुराइयां क्या है? वनफ्सिन वमा सव्वाहा फअल्हमहा फुजूरहा व तक़वाहा कद अफ़लह मन ज़क्काहा व कद खाब मन दस्साहा।
खुदा फरमाता है कि हम नफ्स की कसम खाते हैं और उसकी जिसने इसको बनाया, यानी खुद की कसम खाता है खुदा। क्या कहना चाहता है कि इंसान में खुदा ने दोनों चीजें बुदियत कर दी है, अच्छाई और बुराई। जो अपनी नफ्स को पाक करता है वो तो कामयाबी हासिल करता है, वो डूब जाता है। जो अपने नफ्स को पाक नहीं कर सकता, अपने नफ्स की तरफ देखता नहीं है। मौला ने कई मर्तबा अपने फरमान में फरमाया, इमाम आका सुल्तान मोहम्मद शाह सल्लल्लाहु अलैहि भी फरमाते थे, मौलाना हाजिर इमाम ने भी कई मर्तबा फरमाया कि आपकी ज़िंदगी के दो हिस्से हैं। आप सब मौजूद थे सन 2000 में मौलाना हाजिर इमाम ने जब तशरीफ़ लाए, तो उस वक्त भी मौला ने बैलेंस लाइफ को सामने रखते हुए दोनों चीज़ों के ऊपर खुलासे से मौला ने फरमान फरमाए। कई मर्तबा मौला ने फरमाया, देखो दो चीज़ें हैं आपके जिस्म में, एक तो आपका जिस्म है, दूसरी आपकी रूह। याद रखे मौला ने फरमाया कि इंसान जब इस दुनिया को छोड़ता है, इसकी उम्र पूरी हो जाती है, 100 साल पूरे हो जाते हैं जिसको हम कहते हैं, दुनिया छोड़ता है, तो जिस्म तो उसे मिट्टी में मिल जाता है। वयसअलूनका अनिर रूह, खुदा फरमाता है ये लोग जो तुझे रूह के बारे में पूछते हैं, कुलिर रूह मिन अम्रि रब्बी, इनको कहो कि रूह जो है वो मेरे परवरदिगार के अम्र से है, मेरे परवरदिगार से है। मौला फरमाते हैं कि ये रूह जो परवरदिगार से हैं, अल्लाह से हैं, वो कभी नहीं मरती, वो कभी नहीं मरती। और याद रखे मौला ने फरमाया कि दुनिया की कोई ताकत रूह को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकती। सोल इज इटर्नल, दायमी है, हमेशा रहने वाली चीज है। अब हम देखें, हमारे पास जिस्म भी है, रूह भी है। जिस्म को कितनी मर्तबा हम खाना देते हैं और रूह को कितनी मर्तबा खाना देते हैं? कम से कम 3 मर्तबा तो हम खाते हैं ना, खाते हैं 3 मर्तबा कम से कम। रूह को कितनी मर्तबा देते हैं? कितनी मर्तबा देते हैं? पाबंदी से देते हैं, पाबंदी से। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। आपको याद है कि इसके मुतालिक कुरान की कोई आयत भी है, बताएंगे आप? हाँ हाँ जी, आप एग्री करते हैं इनसे? है ना ये कुरान की आयत, इसका अरेबिक बता सकेंगे? इन सलात तन व अकीमिस सलात, इसकी शुरुआत इस तरह है, व तरफ़ई नहारी व ज़ुलफ़म मिनल लैल, सलात कायम करो सुबह और शाम, और थोड़ी सी रात गए, थोड़ी सी रात गए। तो ये तो कुरान के अंदर 1400 बरस से हमको जिक्र मिलता है, और आप गिनानों के अंदर भी देखेंगे तो इन्हीं चीज़ों का जिक्र है। आगे चलकर मैं आप ही से पूछूंगी कुछ बातें और आप इसका जवाब देंगे, क्योंकि आप रोज़ जमात खाने जाते हैं, कुछ आप गिनान सुनते हैं, कुछ आपको आते भी होंगे। तो थोड़ा सा हम आपस में आप बातें करेंगे ताकि मुझे भी मज़ा आवे, थोड़ा क्लास भी हमारा लाइवली हो जाए, तो ये भी अच्छा रहेगा। तो कहने का मतलब ये है कि मौला फरमाते हैं कि आपके पास जिस्म भी है, रूह भी है। तो जिस तरह हम जिस्म को अच्छे कपड़े पहनाते हैं, हम चाहते हैं कि हर कोई हमें देखे कि हम अच्छे लगते हैं, देखने में अच्छे हो, जहाँ कहीं ज़रूरत है अपने आप को हम सजाते हैं, इसको नहलाते हैं, धुलाते हैं, खाना भी खूब खिलाते हैं, बहुत मोटा करते हैं। तो हम कैसे हैं कि एक मेहमान की तो खूब बहुत ज़्यादा मेहमान नवाजी करते हैं, और दूसरा मेहमान बेचारा अंदर से आवाज़ देता है, मैं भूखा हूँ, मैं प्यासा हूँ। मौला फरमाते हैं कि आप कभी रूह से बात करो। हमने कभी कोशिश की है? हमने कभी कोशिश की है? क्योंकि जब हमने शुरू में बताया कि हमारे अइमा अलैहिमुस्सलाम मोमिनीन को कुरान की तशरीह और दीगर काफ़ी बातें बताते थे, वहाँ एक सवाल जब ये बात आई कि हर चीज़ खुदावंद ताला की तस्बीह पढ़ती है,
तो इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम, इमाम मोहम्मद बाकिर अलैहिस्सलाम से जब ये खुलासा किया गया कि भाई हर चीज़ खुदा की तस्बीह पढ़ती है, बेजान चीज़ें भी तो हैं, क्या ये भी खुदा की तस्बीह पढ़ती है? हर चीज़ में तो सब कोई आ जाता है, हर चीज़ मतलब जानदार और बेजान। तो मौला ने इसका खुलासा फरमाया। मौला ने फरमाया हाँ, हवा से आप देखो दरख्त के पत्ते गिरते हैं, सूखते हैं, और फिर हवा जब ये बहती है इसके साथ साथ पत्ते उड़ते हैं, पत्तों की जो आवाज़ें आती है ये खुदा की तस्बीह है। खिड़कियाँ जब हम खोलते हैं बंद करते हैं, हवा से जब ठक 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 करके खुलती है बंद होती है, आवाज़ आती है खिड़कियों से, ये इसकी तस्बीह है। ये ऐसे बेचारा बेजान है, लेकिन जब इसको हम आवाज़ करते हैं आप देखिए ये इसकी तस्बीह है। तो कभी कभी ये चीज़ें हैं, आज कहते हैं कि आप प्लांट जो है हमारे नबातात वगैरह हैं, इनके साथ आप प्यार और मोहब्बत से बातें करो, देखो ये बगीचा कितना आबाद हो जाता है। हालांकि वो हमारी तरह तो जानदार नहीं, उनमें एक किस्म के जीव है, रूह है, जान है, लेकिन जो अशरफुल मखलूकात में है, इंसान में, वो तो उसमें नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी वो बातें करती है। तो रूह जो हम में है, रूह, जिस्म की तो बात सुनते हैं ना हम, ज़रा कहीं गिरे टकराए लगा तो हम 10 मरतबा तो लोगों को बताएंगे भी कि हमको इधर लग गया या हमारा हाथ जल गया या वगैरह वगैरह, फौरन पता चलता है, उसी वक्त हमको मालूम होता है। रूह के लिए क्यों मालूम नहीं होता? क्यों मालूम नहीं होता? इसलिए कि रूह को हम इतनी तरजीह नहीं देते, जिनकी बिना पर तो हम खड़े हैं, और इन्हीं को हम तरजीह नहीं देते हैं। और इसको तरजीह देने के लिए मौला हमको फरमाते हैं कि आप दो चीज़ों के बने हैं तो दोनों के बीच में आपको बैलेंस रखना है। पीरों ने एक बेहतरीन तरीका ये किया उस वक्त कि अगर पीर दावत देकर चले जाते और ये बातें बताकर भी चले जाते तो आज हम इतने मजबूत नहीं होते मज़हब में। लेकिन इन्हीं बातों को महसूस करने के लिए कि हम में नूर है, उस नूर की चिंगारी के जरिया हम उस इमाम को, चाहे वो फिजिकली दुनिया में कहीं पर भी हो, लेकिन हम चाहें तो जिस वक्त हम जमात खाने में दाखिल होते हैं उस वक्त हम मौला के नूर को महसूस कर सकते हैं, हमेशा कर सकते हैं। लेकिन चूंकि वो घर है जो मौला का है, तो पीरों ने ये तरीका आजमाया कि हिंदू जिस तरह अपने मंदिरों में जाते हैं और उसी में वो खो जाते हैं, अपनी इबादत बंदगी या भजन या डांस करते हुए वो खुदा के, अपने भगवानों के सामने खो जाते हैं। वही तरीका हमको दिया कि आपको वो मौला जो दूर बैठे हैं फिजिकली, इनको हम महसूस करने के लिए एक घर देते हैं जहाँ मौला का नूर भरपूर है, भरपूर, सरासर भरा हुआ है, बहुत ज़्यादा भरा हुआ है। और इसीलिए हमको कहा गया कि आप जब जमात खाने में बैठते हैं, और ये चीज़ भी गिनान में दी गई कि आपस में एक दूसरे को आप पंजा दें, जो हम शाह जो दीदार का पंजा देते हैं। शाह जो दीदार, मौला का दीदार, आपस में एक दूसरे को पंजा दे। और जब आप पंजा देते हैं तो आप याद रखें कि उनकी आंखों में आपको इमाम का दीदार होता है, महसूस होना चाहिए, होना चाहिए हमको, क्योंकि मौला का फरमान है। लेकिन नहीं होता है तो जमात खाना अपनी जगह पे नूर से भरा हुआ है, ये सारे कलीमे अपनी जगह पर एक सदाकत रखते हैं, लेकिन झूठ या फरेब या कुछ गंदगी या कुछ खामी जो है वो हमारे अपनी आँखों में है, अपने वजूद में है। इसलिए पंजा लेते वक्त हमें दीदार नहीं होता, हमें दीदार नहीं होता। तो पीरों ने ये बेहतरीन तरीका बताया, और इसके लिए हमको ये बताया कि आप दोनों वक्त रेगुलरली पाबंदी के साथ जमात खाने में जाओ। इनको मेला कहा गया। मेला किसको कहते हैं? अभी जैसे ईद के मौके पर मेले लगते हैं ना, बड़ा हुजूम वहाँ जमा होता है, हर किस्म की खुशियों में वो शामिल होते हैं। इसी तरह जमात को भी एक मेला कहा गया है कि आप जाइए वहाँ पर और फिर देखिए वहाँ पर आपको क्या क्या मिलता है। क्या मिलता है जमात खाने में? आप लोग बताएंगे? जमात खाने हम जाते हैं, हमको वहाँ क्या क्या हासिल होता है?
सुकून मिलता है, बरकत मिलती है। कितने मोमिनीन को हम मिलते हैं जिनको हम नहीं पहचानते। क्या आप लोगों ने कभी हमको देखा था या हमने कभी आपको देखा था? अगर यहाँ जमात खाने नहीं होते और वहां तकलीफ की निस्बत आप यहाँ आते, लेकिन इतनी बड़ी तादाद में आप जमात के मोमिनीन को मिल सकते थे? मिल सकते थे? नहीं मिल सकते थे। हम कैसे मिल रहे हैं? जमात खाने की निस्बत। जमात खाने की निस्बत हम आपस में एक दूसरे को मिलते हैं, एक दूसरे को पहचानते हैं, हमारे आपस में गहरे ताल्लुकात होते हैं, यहाँ तक कि एक दूसरे के सुख में और दुख में हम काम आते हैं, और तकलीफ के वक्त हम महसूस करते हैं कि हम दुनिया में अकेले नहीं, हम दुनिया में अकेले नहीं। मौला तो हमको फरमाते हैं कि हम आपके साथ में हैं, लेकिन इसके साथ साथ जमात के काफी दीनदार, और आपने यहाँ रहते हुए इन चीजों का तजर्बा भी किया होगा कि काफी ऐसे दीनदार है जमात के जिनको पता चलता है कि हमारे फलाने फलाने भाई दुख में है, तकलीफ में है, तो वहां ये रिश्तेदारी बीच में नहीं आती है कि भाई हमारे चचाजाद है, मामाजाद है, या खोजे है, या पंजाबी है, या सिंधी है, या अफगानी है, या बदख्शानी है। ये चीजें सामने नहीं आती है। एक रिश्ता सामने आता है, हम सब के दरमियान में एक रिश्ता सामने आता है। वो कौन सा रिश्ता है? और हमारे ऊपर कौन है? इमाम ज़मान का नूर है, इमाम ज़मान का नूर है। हम सब इमाम की आंखें हैं, हम सब इमाम के हाथ है, हम सब इमाम के पैर है, क्योंकि इमाम का एग्जिस्टेंस जमात से है। इसीलिए तो मौला कभी कभी जमात में ना इत्तेफाकी होती है, दुख होता है, तो मौला क्यों फरमाते हैं कि जमात में जब कोई एक दूसरे को दुख देता है तो दुख हमको लगता है। आपने कभी ये फरमान सुना है? ये फरमान सुना है क्योंकि आप भी कभी अपने जगह पर वापस जाए, या कभी जमात में किसी से आपकी बातचीत हो, बोलने का मौका हो, तो हमारे ख्याल में ये बात रहे कि जब कभी मौला के मोमिन को बिला वजह कोई दुख पहुंचाता है, दुख पहुंचाने के कई रास्ते होते हैं। इनके काम में रुकावट डालना, इनसे हसद करना, दुश्मनी करना, इनको तकलीफ देना, आगे नहीं आने देना, बहुत सी बातें हैं जिनको हम दुख पहुंचाना कह सकते हैं। मौला इमाम आका सुल्तान मोहम्मद शाह सल्लल्लाहु अलैहि एक मरतबा जमात के दरमियान में मौजूद थे, और मौला के हुजूर में जब ऐसी बातें आई तो मौला ने फरमाया, आपको पता है हमारे मोमिन की जगह कहाँ है? आपको मालूम है? मौला ने फरमाया हमारे मोमिनीन की जगह कहाँ है? कहाँ है? जब हमारे पर तकलीफ थी अफगानिस्तान में या दूसरे ममालिक में, मौला दुखी क्यों होते थे? क्यों मौला को दुख पहुंचता है? मौला की आंखों में आंसू क्यों आते? मौला रोते कब है? एक वालिदैन कब रोते हैं? बच्चे दुखी होते हैं ना, तो वालिदैन अच्छा खाना खा सकता है, वो अच्छा पहन सकेंगे। जबकि इनके बच्चों को तकलीफ है, दुख है, तो हम सब कौन हैं? मौला से रिश्ता क्या हमारा? रूहानी बच्चे हैं। तो रूहानी बच्चों के ऊपर जब तकलीफ हो तो मौला सुकून से बैठ सकते हैं? मौला को चैन आता है? नहीं आता है। मौला दुखी होते हैं, बहुत मर्तबा मौला रोते हैं, रोते हैं। मौला की आंखों में हमारे बुजुर्गों ने आंसू देखे बहुत मर्तबा। इसीलिए मौला ने फरमाया कि हमारे मोमिनीन की जगह हमारी आंखों में है। जब कभी कोई हमारे मोमिन को दुख देता है, तकलीफ देता है, तो हमें यह महसूस होता है कि किसी ने सुई लेकर हमारी आंखों में चुभो दी। सख्त है ना फरमान? फरमान सख्त लगता है ना? आंख में जरा सा कुछ चला जाए तो हमें तकलीफ होती है। कितनी देर तक तकलीफ होती है? कितना इलाज करवाना पड़ता है? मौला फरमाते हैं कि जब हमारे मोमिनीन को कोई दुख देता है
तो हमें महसूस होता है कि कोई सुई लेकर हमारी आंखों में चुभोता है। दुख कम होगा मौला का, ये दुख कम होगा। बहुत ज्यादा मौला को दुख होता है, बहुत तकलीफ होती है। तो जब मोमिनीन जमात में मिलते हैं तो हम कोशिश ये करते हैं कि मौला के बरकत से, मौला के देन से, मौला हमारे दरमियान में जो मौजूद हैं उनके नूर के तुफैल हम एक दूसरे की पूछपरछ करते हैं। हमसे हो सके तो एक दूसरे के अच्छे और बुरे वक्त में हम शेयर करते हैं, जो हाजरी माम की ख्वाहिश है। लेकिन ये सब उसी वक्त मुमकिन है जब हमारे जमा होने की एक जगह हो। तो बेशुमार फायदे में से एक फायदा ये है कि हम एक दूसरे को पहचानते हैं। दूसरा ये है, मौला ने फरमाया कि हम सुबह शाम जब जमात खाने में जाते हैं, दुआ और बंदगी अदा करते हैं, तो ये मौला का शुक्राना अदा होता है। हम में हलीमी आती है। जब कभी कोई कामयाबी होती है तो हम उस वक्त बड़ाई नहीं करते हैं, लेकिन हम्बल रहते हैं। हमें, हमारी आंखों में दिन भाइयों के लिए प्यार और मोहब्बत रहता है, और इसके साथ साथ हमारी रूहानी तरक्की होती है। पीरों ने गिनानों में जहाँ जमात खाने आने की बरकत का जिक्र फरमाया है, कुछ गिनान के पाठ में आपके सामने पढ़ के भी सुनाऊंगी। वहाँ पर पीरों ने ये भी बताया है कि जो जमात खाने में नहीं जाते हैं इनको कितना नुकसान होता है। कभी कभार कुछ जमात खाने के मुखी कामुड़िया साहिबान जब जमात खाने की अटेंडेंस प्रवास करने के लिए हमको बुलाते हैं तो वो इंसिस्ट करते हैं, वो अपनी जगह पर राइट है। वो कहते हैं कि इतनी सारी चीज़ें मौला ने बताई हैं फरमान में, पीरों ने गिनान में, कि जो जमात खाने में नहीं आते इनको कितना नुकसान जाता है। कभी इनका भी तो जिक्र करो ताकि जमात को पता चले। तो हम मुअद्दबाना अर्ज करते हैं कि मुखी साहब एक तो जमात आती बड़ी मुश्किल से है, और इनको फिर ऐसी बातें बताने जाएंगे तो कहेंगे एक दिन भी जाते हैं तो मिशनरी उठ के हमको डांट देता है। तो अच्छी बात यह है ना कि जमात खाने में आने के जो फ़ायदे हैं हम उनको वो बता दें। जो मौला का अप्रोच है कि भाई हम यहाँ से भी अपनी नाक पकड़ सकते हैं ना, कितनी आसानी से पकड़ लेते हैं हर कोई, लेकिन हम यहाँ से नहीं पकड़ सकते। बड़ी मुश्किल होता है कि हम पीछे से हाथ करके अपनी नाक पकड़े। तो जब सीधी नाक पकड़ी जाती है तो उल्टी क्यों पकड़ने जाए, है ना। इसी तरह अगर हम पॉजिटिवली कोई बात जमात को कह सकते हैं कि आने में फ़ायदे क्या है, तो वो खुद ही कंपेयर करेगा कि नए आने में मैं खोता क्या हूँ। कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो गिनान में जिक्र दोनों का है, लेकिन मैं सिर्फ आपको आने का फ़ायदा बताऊं। और इसके साथ में हमारे पास जमात खाने हैं, और जमात खाने में कुछ जमात खाने हमारे दरखाना है। ये दरखाना किसको कहते हैं इसका भी हम जिक्र करेंगे इसी गिनान की रोशनी में। नर मोहम्मद शाह जो सैयद इमाम शाह के बेटे हैं, और इन्होंने सतवेणी जी वेल नाम का एक गिनान का बड़ा किताब कह सकते ग्रंथ, जो हमारे छोटे छोटे गिनान, इनको हम गिनान कहते हैं। और बड़ी तादाद में, जैसे आप शाम को एक पाठ गिनान का सुनते रोजाना दुआ से पहले तकरीबन सुनते, आपको याद है कौन सा पाठ सुनते हैं? आशा जी वर्डिंग्स क्या है इसके? संजा वेला तमे मत कोई चूको, ए छे गुरनी एंधाणी, ए वेड़ा तमने दीदी कीधी ते दिन निबारी। ठीक है, थोड़ा सा मैं इसका खुलासा आपको बता भी दूं कि हमारे गिनानों में 5 बारियों का जिक्र है। बारी किसको कहते हैं? ये खिड़कियों को। और बारी कहते हैं, अभी हम तरीकावट में दाखिल हुए, नीचे जो गेट में एक छोटा सा गेट है जिसमें से हम जो लंबे हैं वो झुक के भी आ सकते हैं, मेरे जैसे सीधे सीधे चले आते हैं, ठीक है ना। तो वो झुक के जो आते हैं वो छोटा सा गेट, इसको भी बारी कहते हैं। अब दीन में दाखिल होने का एक छोटा सा दरवाज़ा पीर ने बताया है, और एक दरवाज़ा नहीं 5 दरवाजे बताए दीन में दाखिल होने के। मज़हब में तो हम आते हैं सुबह शाम जमात खाना, हमको रेगुलर जो बेशुमार इसकी रहमतें नेमतें बरकत है वो तो हमें हासिल करना है, क्योंकि हमारी रूह के लिए, रूह की तरक्की के लिए। लेकिन इसके साथ साथ ये दूसरे जो आमाल है, जमात खाने में जाने के साथ शाम को हम 2 दुआएं पढ़ते हैं, सुबह एक दुआ पढ़ते हैं, बंदगी के लिए हम उठते हैं, और इसके साथ साथ जो दुआ और दसून, 2 हमारे स्ट्रॉन्ग पिलर्स हैं मज़हब के, दुआ और दसून। आप देखिए पिलर्स को हटा दे तो इमारत गिर जाएगी,
अगर एक पिलर को हटा दे तब भी इमारत लुढ़क जाएगी, ठीक है ना। तो ये दोनों मजहब की टांगे हैं, मजहब की टांगे हैं, दुआ और दसोन, और इसमें कभी भी कंप्रोमाइज नहीं हो सकता है। दुआ पाबंदी से वक्त पर पढ़नी है। अलबत्ता मौला ने फरमाया कि उस वक्त कभी आप किसी काम में हैं, आप ड्यूटी पर हैं, या ऐसी जगह पर आप हैं कि जहाँ आप उस वक्त दुआ नहीं पढ़ सकते हैं, तो एक छोटी सी तस्बीह आप उस वक्त याद कर ले मौला को कि मौला वक्त तो हो गया है, लेकिन जब अपने काम से आप फारिग हो जाते हैं तो उसी वक्त आप अपनी दुआ पढ़े, वापस पढ़े, लेकिन दुआ को चूके नहीं, क्योंकि दुआ और दसों हम पर कर्ज है। हम अदा करेंगे तो ये हमारा फर्ज भी है, और अगर अदा नहीं करते तो कर्ज रह जाता है। वो कर्ज हमेशा चुकाना होता है ना। जिस घर में हम किराया देते हैं, महीना पूरा होता है तो क्या देना पड़ता है? किराया देना पड़ता है। 2-3 महीना नहीं दिए तो क्या होगा? मकान मालिक या तो हमसे किराया लेगा या मकान खाली कराएगा, लेकिन जो किराया है वो तो देना ही है। इसी तरह ये हमारी रूह की दसोन है, दुआ और दसोन। दुआ और दसोन रूह को चलाती है, हमारे ईमान की टांगे हैं, और ईमान को जितना मजबूत करना है तो इन 2 चीज़ों को हम मजबूत करें, और इन 2 चीज़ों में मजबूत रहेंगे तो हम सब में मजबूत हैं। तो 5 छोटे छोटे बारियों का जिक्र किया है, दरवाज़ों का। इसमें से सबसे पहला जिक्र है वो शाम की वेड़ा है, संजा, संध्या या संजा। इसको शाम की ट्वाइलाइट, जो शफक होता है ना, सूरज डूबता होता है, सुनहरी सुनहरी किरणें थोड़ी सी हमको नज़र आती है, और चांद निकल आता है, निकलना शुरू करता है। इन दोनों के दरमियान का वक्त, इसी तरह सुबह चांद जा रहा है और आप देखें लाल सुनहरी किरण की किरणें निकलती है, उसके पहले का थोड़ा सा जो वक्त है, इसको संजा कहते हैं, संध्या कहते हैं, शफक कहते हैं, ट्वाइलाइट कहते हैं। ट्वाइलाइट, दोनों लाइटों का जहाँ पर थोड़ा सा मिलन होता है। इस वक्त में हमें दुआ के लिए फरमाया है कि पहला जो दरवाज़ा है दिन में दाखिल होने के लिए, वो आपकी शाम की दुआ है। जो दिन के 2 सिरे की आयत हमने देखी, सुबह और शाम की, मौला को मिलने की ये निशानी है। ये वक्त आपको दिया है और ये दिन में दाखिल होने का एक दरवाज़ा दिया है। इसके बाद दूसरा दरवाज़ा बताया है कि दूसरा दरवाज़ा थोड़ी सी रात गए, जिसको हम सोमनी की दुआ कहते हैं, जो दूसरी दुआ हम पढ़ते हैं, पहली दुआ और दूसरी दुआ शाम की। पहले ये वक्त था कि फौरी तौर पर नहीं पढ़ी जाती थी, हालात के तहत मौला के फरमान के मुताबिक हम दोनों दुआ में एक 2-3 मिनट का या कभी कभी कोई वक्फा नहीं रख के पढ़ लेते हैं। वरना पहली दुआ तो ट्वाइलाइट के वक्त पढ़ी जाती थी, संझा के वक्त पढ़ी जाती थी, और दूसरी दुआ तकरीबन घंटा या 1.5 घंटा, 6 घड़ियाँ, एक घड़ी जो है वो तकरीबन 22-22.5 मिनट की है। दिन में 64 घड़ियाँ हैं, 64, और एक घड़ी, एक ये टाइम को कहते हैं, और ये टाइम जो है ये तकरीबन 22 या 22.5 मिनट का होता है। तो 6 घड़ियाँ यानी तकरीबन घंटा या 1.5 घंटे के बाद में दूसरी दुआ पढ़ी जाती थी। जब लोग अपने कारोबार से, किसान हुआ करते थे, सब काम करके वापस आते थे, तब दूसरी दुआ पढ़ी जाती थी। तो इसको कहते हैं कि ये दूसरी दुआ है, ये दरगाह की है। दरगाह या दरखाना, इमाम जहाँ फिजिकली क़याम करते थे, उस वक्त ईरान जो थी, ईरान में इमाम का जो क़याम था वो मोमिनीन के लिए दरगाह था और मोमिनीन के लिए दरखाना था। तो जो भी मोमिन दुनिया के किसी भी हिस्से से जब मौला की मुलाकात के लिए ईरान तशरीफ़ ले जाता था, तो उस वक्त कहा जाता था कि ये मौला की दरगाह में गया या ये मौला के दरखाने में गया। उस वक्त दरखाना मौला के फिज़िकली क़याम को कहते थे। अभी दरखाना मौला ने जहाँ कहीं जमात खाने हैं, उस मुल्क का जो कैपिटल होता है या बड़े जमात जहाँ होती है, वहाँ एक जमात को मौला दरखाना कहते। जिस तरह हमारे पास बगीचे का जमात खाना, गार्डन का जमात खाना दरखाना है, इसी तरह इंडिया में, अफ्रीका में, यूके में, यूएसए में, हर जगह पे अपना अपना एक एक दरखाना होता है। तो ये दूसरे यानी पहले में आप आए तो ये मौला की निशानी है, दिन में दाखिल होने का है। दाखिल हो गए तो अभी आपको मौला के नूर की तरफ ले जाने का रास्ता वो दूसरी दुआ है। आपने सेकंड दुआ भी पढ़ ली, उसमें भी शामिल हुए, तो आप मौला के दरगाह तक जाते हैं। तीसरी जो दुआ है वो पांचली है, जो सुबह का टाइम जो हमने आपको बताया, सुबह होने में कुछ देर पहले, वो हमारी सुबह की दुआ है।
इसके बाद में ये कहते हैं ये रास्ता जन्नत की तरफ ले जाता है। इसके बाद जो चौथी बारी आती है कि 3 पर आप अमल किए, तो चौथा जो दरवाज़ा है वो ऐसा है कि मोमिन जब मज़हब में आगे बढ़ता है तो खामोश हो जाता है, बड़ा हम्बल कामफुल हो जाता है। वो कभी अपने मुंह से, अपने किसी अमाल से, किसी अमल से किसी को भी तकलीफ पहुंचाने की न कभी कोशिश करता है और न कभी सोचता है। तो ऐसे मोमिन कभी खुदा की तरफ से, मौला की तरफ से भी उसको कभी दुख आता है, कभी सुख आता है, तो वो शुक्र अदा करता है। तो ये चौथे बारी दिन का जो दरवाज़ा है वो ये है कि 3 दरवाजे से आप जब चौथे दरवाजे में आते हैं और इसमें मौला आपको ऐसा हम्बल बनाता है कि आपको खामोश कर देता है। चौथी बारी नहीं कुछ बोले, वो कोई शिकवा कोई शिकायत नहीं करता है, हमेशा वो मौला के साथ प्यार और मोहब्बत से रहता है और जन्नत की तरफ जाने का अपना रास्ता उसमें हमवार रहता है। इसके बाद कहते हैं कि जो 5वां दरवाज़ा है दिन का वो सबसे बड़ा है, वो दरवाज़ा है दसों का। जो दसों में भी पाबंद है और उसमें जो गलती नहीं करता, गाफिल नहीं होता है, होशियार रहता है, तो ये मोमिन मौला के नूर को भी पहचानता है, वहाँ भी कुर्बत हासिल करता है और जन्नत भी उसको नसीब होती है। तो ये 5 बारियों का जिक्र है। आप सिर्फ एक बारी सुनते हैं, लेकिन ऐसे 5 बारियां हैं और इन सब के ऊपर वाज मौजूद हैं। आप चाहें तो कभी ये वाज सुन सकते हैं, आपको पता चले जमात खाने के एग्जिस्टेंस के ऊपर भी वाज है और दूसरी चीज़ों के ऊपर भी वाज है। अब सतवेणी जी वेल के अंदर इसके जो सवाब बताए हैं कि वक़्त बंदगी का सवाब बहुत तेरा, दुआ और बंदगी का जो वक्त है उसके सवाब बहुत सारे हैं। सुनो मुनिवर ओ मेमा उसकेरा, ए मोमिन इसका महिमा, उसका जो मकाम है, उसके जो सिग्निफिकेंस है वो आप सुने। जो सुबह का वक्त चुक जाता है तो बरकत हुए उसे, जो कोई वो गुजारे वक्त सवार, जो सुबह का वक्त पाबंदी से गुजारता है, दुआ का चुकता नहीं है, क्योंकि मैं वो दूसरे गिनान की लाइन मेरे सामने आ गई थी जिसमें नहीं आने का जिक्र है, इसमें आने का जिक्र है। जो सुबह का वक्त जमात में आता है, जमात के साथ दुआ पढ़ता है, उसको बेशुमार बरकत होती है। और भी दर्जा है ईसा भाई, 7 बार दरखाना करवा जाए, इससे भी बढ़कर सुबह की दुआ का दर्जा है, मकाम है कि गोया आप 7 मरतबा जहाँ कहीं भी रहते हैं, उस ज़माने की बात पीर करते हैं कि इतनी अजियतें तकलीफ़ बर्दाश्त करके वो ईरान जाते थे दरखाना मौला का नूर हासिल करने के लिए, दीदार करने के लिए। और इसमें कुछ लोग तो दीदार कर सकते थे, कुछ लोग राह में इंतकाल कर जाते थे, अजियतें बर्दाश्त नहीं कर पाते थे। तो कहते हैं कि 7 मरतबा, 1 मरतबा नहीं 7 टाइम्स आप तकलीफ़ें उठाकर वहाँ तक पहुँचे और आपने मौला का दीदार किया, इतना आपको दर्जा मिलता है। बेटियां हुई नरजी को निर्धार, और वहां जाकर वो आप मौला के दरखाने में तो जाते हैं, मौला को भी आप मुलाकात करते हैं। ऐसा सवाब है भाई वक्त सवार, सुबह के दुआ का और जमात खाने की हाजिरी का इतना अच्छा सवाब आपको मिलता है। शाम का वक्त जो जमात सु पड़े, जो शाम का टाइम भी जमात के साथ में गुजारता है, 40 दरगाह जो ऐसी करे, वो 40 टाइम्स जैसे इमाम का इसी तरह दरखाना में गया, तकलीफ़ लिया और मौला से मुलाकात हुई, मौला का दीदार नसीब किया, इतना इसको सवाब मिलता है। और भी सवाइयाँ होवे ईमान जैसा 40 जो पढ़े कुरान, जिस तरह मुल्ला मुल्ली पढ़ते कुरान, इस तरह नहीं, कुरान के मगज़ को जो समझता है 40 टाइम्स, इतना इसको सवाब मिलता है। और सोमनी दुआ, शाम की दूसरी दुआ भी जो जमात के साथ में पढ़ता है तो 1000 मरतबा इतनी तकलीफ़ उठा के दरखाना जाता है, मौला को मिलता है और मौला का नूर हासिल करता है, इतना इसको सवाब मिलता है। औलिया, अंबिया, पीर, पैगंबर सब इससे खुश होते हैं और इतनी ही बरकत मौला इनको फरमाता है। ये जो जमात खाने रेगुलर जाता है, इनकी बरकत है। तो हमारी ज़िंदगी में जमात खाना इतना अहमियत रखता है कि हम जितना पाबंदी के साथ में जाए और वहाँ पर जितना वक्त गुजारे, क्योंकि ये हमारी रूह की दसून है। और इसके साथ साथ हमारे ईमान की मजबूती के लिए एक बड़ी चीज़ है जिसमें मौलाना हाज़िर इमाम भी आज शामिल हुए हैं कुछ वक्त से, कि मौला खुद हमारा सिलेबस बनाते हैं। अब देखिए मौला को कितनी फिक्र है। क्यों? मौला चाहते हैं कि हर रूहानी बच्चा कहीं पर भी रहता हो, वो
मजहबी तालीम के बगैर न रहे, वो मजहबी तालीम के बगैर न रहे। और जब मजहबी तालीम की बात आती है तो आज हम इल्म हासिल करते हैं, हम में से बहुत से लोग, बहुत सी ऐसी खिदमत है। और मैं आज इस हवाले से एक रिक्वेस्ट करूँगी कि सिर्फ ऐसी जगह मत भागना कि जहाँ हमारी दुनियावी तरक्की के लिए हमें कुछ सर्टिफिकेट मिल जाए या हम बता दें कि ये हमको अवार्ड मिला है, ये अवार्ड मिला है। नहीं, जहाँ आपको अवार्ड ना भी मिले ना, लेकिन इल्म मिले, वहाँ ज़रूर जाना, वहाँ ज़रूर जाना। क्योंकि ये इदारे हमारे रूहानी और जिस्मानी दोनों सलाहियतों में आगे ले जाने के लिए काम करते हैं। तो जहाँ कहीं हमारी दुनियावी तालीम में हम आगे जाते हैं, इसी तरह मज़हब में पेश रहना, मज़हबी इल्म के लिए। और अगर कुछ जानते हैं और कभी हमारी सर्विस चाहती है जमात, एक टीचर के तौर पे या किसी भी तौर पे, तो कभी मना नहीं करना। क्योंकि ये रसूल सल्लम का काम है, ये इमामों का काम है जिन्होंने अपने रूहानी बच्चों को खुद तालीम दी है। और अगर आज ये काम हमको मिलता है तो हमारे लिए इससे बड़ी बरकत और कोई नहीं है कि हम इमाम के घर की एक खिदमत करें। मैं आपको एक मिसाल दूंगी कि 1905 में बागामोया की जमात जो जंजबार का इलाका है उसके करीब थी और जंजबार में मेहमानी थी। और मौला के वहाँ तशरीफ़ ले जाने की ख़ास वजह ये थी कि मौला को रिपोर्ट मिली कि नाइट स्कूल का जो टीचर था उसको निकाल दिया गया है और नाइट स्कूल, हमारे मजहबी स्कूल आरसी वगैरह वहाँ पर बंद है। उस वक्त नाइट स्कूल कहा जाता था क्योंकि वो रात को ही चलती थी सिर्फ। इसके बाद में कुछ रिसेंट पास में इसका नाम रिलीजियस सेंटर के तौर पे, मजहबी तालीम के तौर पे हम ले आए हैं। इसके पहले नाइट स्कूल कहते थे। तो मौला को जब रिपोर्ट मिली तो मौला बड़े नाराज़ हुए। आप देखें उस वक्त हिंदुस्तान से जंजबार जाना इतना आसान नहीं था। 2 महीने लगते थे मौला को, काफ़ी मुख्तलिफ तरीके से सफ़र करना पड़ता था, बाय रोड, बाय बस और बाय शिप। प्लेन भी नहीं हुआ करते थे, कुछ नहीं था। आप समझ सकते हैं कि इमाम को कितनी तकलीफ होती होगी। लेकिन जब मौला को पता चला कि नाइट स्कूल बंद कर दिया गया है तो मौला वहाँ तशरीफ़ ले गए। मौला बहुत गुस्से में थे और मौला ने फरमाया कि भाई ये नाइट स्कूल के टीचर को क्यों निकाल दिया, जिसको भगत कहते थे। भगत मोमिन को कहते हैं, लेकिन उस वक्त भगत हुआ करते थे जो नाइट स्कूल के असातिज़ा होते थे। तो मौला ने फरमाया क्यों निकाल दिया गया? तो अर्ज़ किया कि खुदाविन तनख्वाह ज़्यादा चाहता था। कितनी तनख्वाह थी उस वक्त? उस ज़माने में 1905 की बात करती हूँ, महीने की 25 रुपया तनख्वाह थी। उसने 5 रुपया ज़्यादा चाहा, वो 5 रुपया ज़्यादा चाहने पर उसको निकाल दिया, नाइट स्कूल बंद कर दिया। मौला ने फरमाया तुमको अपनी जेब से देना पड़ता है, हम देते हैं ना। तो हमको पूछा क्यों नहीं? मौला ने फरमाया क्यों नहीं पूछा? इसके 30 रुपया तनख्वाह कर देते, हमारी नाइट स्कूल तो चलती। ये हमारे बच्चे मजहबी तालीम से इतना यानी दूर तो नहीं रहते, अपने आप को फ़ायदा तो उठाते, मजबूत बनते। और मौला ने फरमाया याद रखो, जिन बच्चों को मजहबी तालीम नहीं मिलेगी, इनके ईमान कमज़ोर होंगे, तो इसकी जिम्मेदारी जमात के मुखी का मड़िया, जमात के ओहदेदारान पर होगी और हम इनसे जवाब तलब करेंगे, हम इनसे जवाब तलब करेंगे। काफ़ी मौला गुस्से में थे। वो पुराने फरामीन जो मैन्युस्क्रिप्ट है, इनसे ये हिस्सा हमने लिया है। इसके बाद में मौला ने फरमाया शर्म की बात है, 600 की जमात में 150 बच्चे हैं और टीचर को निकाल दिया। इसकी तनख्वाह बढ़ाओ। है कोई टीचर? आप हिंदुस्तान लिखो, आप जंजबार लिखो, यहाँ से नहीं है तो हिंदुस्तान से टीचर मंगाओ। लेकिन मजहबी तालीम के बगैर हमारी जमात नहीं होनी चाहिए, जो आज मौलाना हाज़िर इमाम फरमाते। फिर एक शख्स खड़ा हुआ, जीवराज वालजी इनका नाम था। मौला बहुत खुश हुए, मौला ने इनको कबूल फरमाया। जमात को कहा कि आप भी इसको कबूल फरमाते हैं, तो जमात ने भी मौला को साथ दिया। उस वक्त मौला ने कहा जब बच्चा गलती करता है तो बाप गुस्से होता है, हमने भी इसी तरह किया। आपने गलती की तो हम नाराज़ हो गए, गुस्से हो गए, लेकिन अभी आप जब हमारी बात माने हैं तो अभी हमारा गुस्सा कम हो गया है, हम आपसे प्यार करते हैं, हम आपसे मोहब्बत करते हैं। मौला ने फरमाया लेकिन हमारा स्कूल चलाओ। देखो अगर हिंदुस्तान होता, ट्रेन चलती, रेलगाड़ियाँ चलती, बसें चलती और हमारे लिए मुमकिन होता तो ये काम हम आपको नहीं देते। मौला ने फरमाया हम खुद बसों में ट्रैवलिंग करते, हम रेलगाड़ी में ट्रैवलिंग करते और हम नाइट स्कूल का ताला खुद खोलते और अपने बच्चों को पढ़ाते। अब देखिए किसका काम है? ऐमा का काम है।
और ये काम मौला ने हम पर छोड़ा हुआ है, मौला की रहनुमाई से। वो मौला खुद सिलेबस बनाते हैं। मौला चाहते हैं कि जो हमारे स्कूलों को आबाद करते हैं, जो हाजिरी देकर जमात खाने को आबाद करते हैं, वो हमारा घर आबाद करते हैं, खुदा उनका घर आबाद करता है और खुदा उनको बरकत देता है, उनकी आल औलाद में बरकत देता है। तो ये हमारी रूहानी ग़िज़ा है कि हम दुनिया में आए हैं, हमारे एक रिश्ते को हम बरकरार रखें। सिर्फ पहचाने कि दुआ बंदगी ये तो हमारे नूरानी ताल्लुकात को मजबूत करने का एक रिश्ता है, इसके साथ साथ हमारी एथिक्स, हमारे अखलाक, हमारे बोलने करने के तरीके, हमारी ह्यूमिलिटी, हमारी दीनदारी, हमारी मजहबी तालीम और किसी भी इदारे में, खा वो छोटा है खा वो बड़ा है, कभी भी हमें खिदमत के लिए कहा जाए तो याद रखें ये इदारे की सिर्फ सेवा नहीं है, ये ज़माने के इमाम की सेवा है, जिससे इमाम के इमामत और इमाम के इदारे और मजबूत होते हैं। जैसे मैंने पहले कहा, हम इमाम का एग्जिस्टेंस है, इमाम की आंखें, इमाम का दिल, इमाम के ख्यालात, इमाम का वजूद हम उसी वक्त बन सकते हैं जब सरतापा हम मौला को समझने की कोशिश करें और अपनी रूह की हम शनाख्त हासिल करें। मैं यहीं पर बंद करती हूँ।